Hello dear students, welcome to ACL online spoken English class. Today I am going to tell you about the facts of the group discussions. But before explaining group discussion, let me tell you about what's the group discussion. A group discussion tests how you function as a part of a team. You'll always be working in team as a member or as a leader. Actually, group discussion is a logical extension of the candidate's overall personality. Okay dear students, take out your notes and jog your mind. Most of the students, they take part in group discussion, but they don't know the real essence, the real ways and mechanism how to take part actively in discussion. But today I'll make everything easy. Let's go directly with the real group discussion facts. This is the common problem of the students. They don't know what the normal duration of a GD means. एक GD का सामान्य अवधि क्या होता है? तो dear students, a GD is generally of 15 to 20 minutes duration. कोई भी एक प्रोफेशनल GD होती है 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन तक के लिए ही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पैनल मेंबर्स आर देयर टू इवेल्युएट अस. मीन्स कितने लोग होंगे जो हमारी GD को इवेल्युएट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, there are usually 3 or 4 panel members to evaluate us and they are known as GTO. GTO means Group Testing Officer. Next question, should we begin the GD by appointing a leader amongst ourselves? क्या हमें अपने बीच से ही किसी एक को लीडर अपॉइंट करते हुए GD शुरू करना चाहिए? तो इसका जवाब है नो, you shouldn't. Next question, is there time given for preparation after the topic is given and before standing the GD? मीन्स कि अगर GD का टॉपिक दे दिया जाता है तो क्या प्रिपरेशन के लिए कुछ समय दिया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, यूजुअली सम टाइम 2 to 5 minutes इज गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, am I allowed to carry a piece of paper during the GD? So I suggest don't keep it. Next question, sometimes it happens if I don't understand the meaning of the topic, तो should I ask the moderator to explain it? कभी कभी होता है कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है, तो क्या हम जो मॉडरेटर है क्या उससे रिक्वेस्ट किया सकता है कि वो इसे एक्सप्लेन करे? तो मैं यहाँ पे सजेस्ट आपको करूँगा कि यू कांट आस्क द मॉडरेटर द मीनिंग ऑफ द टॉपिक. आप उससे बिल्कुल कतई ना पूछें and listen to the discussion carefully for the first 3 or 4 minutes and after some time you'll come to know that all the facts are being cleared and then take part actively. थोड़ा सा वेट करो, सुनो ध्यान से, अपने आप ऐसा लगेगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है, इट्स ट्रू दैट द पर्सन हु स्पीक्स द मोस्ट इन ए GD इज द वन हु इज मोस्ट सक्सेसफुल. कि मीन्स जो ज़्यादा GD में बोला है वही सक्सेसफुल है. तो ऐसा नहीं है, दिस इज अ मिथ. आप क्वांटिटी पे मत जाओ कि नंबर ऑफ सेंटेंसेस आपने कितने डिलीवर किए हैं, बट जस्ट ट्राई टू गो इन द डेप्थ एंड योर सेंटेंसेस एंड आइडियाज मस्ट बी एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज for how long should I participate? So कितने देर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए? So in a 20-minute GD with 12 to 15 participants, you should participate at least 4 times. What's the role of eye contact in GD? The role of eye contact is the most important and the eye contact is the cement between the audience and the performer. तो audience और performer दोनों के बीच में एक तरीके का सीमेंट का काम ये करता है. और अगर आई कांटेक्ट है, so in this way you can show your confidence level high. Next question, is it true that the GD is used more as an elimination technique rather than a selection tool? क्या ऐसा माना जाता है कि ये कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने की, उस कंपटीशन से बाहर निकालने की एक ये टेक्निक है सिलेक्शन के बजाय? तो डियर स्टूडेंट्स, डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट. ये डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड इन द फैक्ट्स एंड फिगर्स यू कोट ड्यूरिंग द GD? मीन्स जब आप GD कर रहे होते हैं और जो फैक्ट्स आप डिलीवर करते हैं या जो फिगर्स आप रखते हैं तो उसकी एक्यूरेसी क्या वांछित होती है?
तो डियर स्टूडेंट, एन एरर मार्जिन ऑफ 5% इज एक्सेप्टेबल, मीन्स 5% या 5% की गलतियां आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन एंड समरी एब्सोल्युटली एसेंशियल, कि सबसे अंत में क्या जो उसका सारांश है क्या वास्तव में वो आवश्यक है? तो डियर स्टूडेंट्स, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू आई डू समवन एल्स हैज ऑलरेडी सेड ऑल दैट आई वांटेड टू से, जो आप कहना चाहते हो किसी ने पहले ही कह दिया है, तो व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम? सो डियर स्टूडेंट, एट दैट टाइम you have two choices. The first one is agree with the point made by your friend and add on. Drop the point and think of something new to say. कभी कभी क्या होता है कि इन द मीन टाइम कि आपका दोस्त कोई पॉइंट को वो जनरेट कर रहा है और आप चाहते हो कि आप उसे इंटरप्ट करके यू वांट टू पुट योर आइडियाज। तो व्हाट आर द एक्सेप्टेबल वेज ऑफ इंटरप्टिंग समबडी? कैसे वो कौन से एक्सेप्टेबल वेज हैं अगले को इंटरप्ट करने के? तो डियर स्टूडेंट, आप उन्हें एक्सक्यूज मी बट आई फील दैट व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट टोटली ट्रू, इस तरीके से भी कह करके आप उन्हें इंटरप्ट कर सकते हैं। या बाय सेइंग यस आई एग्री विद योर आइडिया एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू इट, आप ऐसे भी कह सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। या आप बोल सकते हैं कि बाय आस्किंग फॉर सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द स्पीकर ऑन द पॉइंट विच इज मेकिंग एट दैट मोमेंट। तो दीज आर द एक्सेप्टेबल वेज, इस तरीके से आप इंटरप्ट कर सकते हैं, बट you'll have to take part actively and you'll have to snatch your position yourself. Nobody will give you chance. You'll be seeing whenever you take part in discussion, at that time sometimes you want to state an opinion, but at that time most of the students they are trapped in the toughness of the vocab, कि discussion आप कर रहे हैं, अब हमें कोई वोकैबुलरी नहीं आ रही, शब्दकोश नहीं आ रहे, कैसे हम बिगिन करें? तो इस बिगनिंग के लिए हम कैसे सेंटेंसेस को क्रिएट करें? तो अब मैं वो आपको बता रहा हूँ। लिसन, सबसे पहले इनफॉर्मल वे, जब आप अपने आइडियाज़ को, अपने सेंटेंसेस को डिलीवर कर रहे हों तो आप बिगनिंग ऐसे कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा, आई थिंक दैट। तीसरा हो गया आई फील दैट, या आप बोल सकते हैं आई बिलीव दैट। नेक्स्ट बोल सकते हैं आप इट सीम्स टू मी दैट। अगला बोल सकते हैं आप इफ़ यू आस्क मी, और I'd say that। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं द पॉइंट इज। आगे बोल सकते हैं आप जैसे एज आई सी इट। आगे बोल सकते हैं आप द पॉइंट इज। तो इस तरीके से आप इनफॉर्मल वेज से आप बिगिन कर सकते हैं। अब अपार्ट ऑफ दिस इनफॉर्मल वे, अब कुछ फॉर्मल तरीके भी हैं कैसे उन फॉर्मल तरीके से आप बिगिन करें। जैसे यू नो व्हाट आई थिंक। अगला ऐसे बोल सकते हैं आप जैसे डोंट यू एग्री दैट। फिर आगे आप शुरू कर सकते हैं I'd just like to say that। फिर आप बोल सकते हैं जैसे I'd like to point out that। फिर इस तरीके से आप सेंटेंसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपका जो साथी है वो कुछ कह रहा है और आप चाहते हो कि व्हेन यू वांट समवन टू रिपीट और एक्सप्लेन, कि वो एक बार फिर से बोले और उसे एक्सप्लेन करे, तो एट दैट टाइम आप कह सकते हो कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। और आप बोल सकते हो जैसे आई एम सॉरी बट आई डिडंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। या आप बोल सकते हैं कुड यू गिव एन एग्जांपल। आगे बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय। या बोल सकते हैं वुड एक्सप्लेन दैट प्लीज़। तो इस तरीके से आप बोल करके आप अगले को बता सकते हो कि एक बार फिर से वो एक्सप्लेन करे या रिपीट करे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि व्हेन यू वांट टू एग्री विद समवन, कि आप किसी से सहमत होते हैं, तो ऐसे समय में आप क्या कहेंगे? आप बोल सकते हैं यू आर राइट, या आई थिंक सो, या आई एग्री विद यू, या यू कुड बी राइट, या आई कुडंट एग्री मोर, या दैट्स अ गुड पॉइंट। तो इस तरीके से आप अपनी सहमति को बता सकते हैं। या आप बोल सकते हैं आई एग्री एंटायरली,
या बोल सकते हैं आप यू नो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, या आप बोल सकते हैं आई सी व्हाट यू मीन। तो इस तरीके से आप अपनी सहमति को दर्शा सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, व्हेन यू वांट टू डिसएग्री विद समवन, आप किसी से असहमत हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल स्पीक, तो आप बोल सकते हैं कि यस बट करके आगे आप जोड़ दीजिए, या आई डिसएग्री, या दैट्स नॉट द पॉइंट, या नो आई थिंक यू आर रॉन्ग, या अप टू ए पॉइंट बट करके आगे जोड़ दीजिए आप, या परहैप्स बट डोंट यू थिंक दैट करके आगे आप अपनी बात को जोड़ दीजिए, या आई सी व्हाट यू मीन बट। तो इस तरीके से आप अपनी असहमति को अगले को बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बॉडी लैंग्वेज आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, इसमें इसके क्या डूज हैं, इसके क्या डोंट्स हैं। अब जैसे बैठने को आप ले लो, तो इन ग्रुप डिस्कशन ना, सिट अप स्ट्रेट एंड लीन स्लाइटली फॉरवर्ड इन योर चेयर। मीन्स आप सीधा बैठो और अपने सीट पे हल्का सा, अपने चेयर पे थोड़ा सा हल्का सा आगे आप लीन रहोगे, झुके रहोगे। और अगली जो चीज़ है कि शो योर एंथुजियाज्म, हमेशा उत्साह आप दिखाते रहो। और टाइम टू टाइम नॉट एंड मेक पॉजिटिव जेस्चर्स, कि आप हमेशा सर हिलाते रहो और ऐसे मुद्राओं को आप शो करो कि उससे आपकी पॉजिटिविटी शो होती रहे। और whenever you speak the first sentence, at that time just smile. Whenever you are putting your ideas in the group discussion na, so don't rub the back of your head or neck, means अपने गर्दन के पीछे आप अपने हाथों से उसे रब ना करें। it minimizes your confidence। and don't rub or touch your nose। आपको बैठते समय क्रॉस लेग नहीं करना है, मीन्स दोनों पैर क्रॉस करके नहीं बैठना है, और दोनों हाथ भी क्रॉस करके नहीं बैठना है, और जो शर्ट है वो अनबटन नहीं होनी चाहिए। और अक्सर कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई अगर बोलता है तो वो एक्सेसिव ब्लिंकिंग कभी कभी करता है, अपनी आंखों को कई बार खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है। तो इस आल्सो द नेगेटिव जेस्चर, ये आपको ऐसा नहीं करना है। दोनों हाथों की फिंगर्स को आप, उनके टिप को आप टच कर सकते हैं। इट शोज दैट यू आर इवेल्युएटिंग समथिंग। और लेकिन फिंगर के अंदर फिंगर डालना इज अ नेगेटिव जेस्चर, डोंट डू इट। And one very important thing, I have seen that the students who are in the habit of reading, only those of the students can pursue the matter betterly in discussion, otherwise no। So ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ने की आदत है, रीडिंग हैबिट है, केवल वही स्टूडेंट अपने इश्यूज को बेहतर तरीके से जीडी में रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू just to try to collect some of the educational books, discussion books, and keep on reading. So dear students, I think that all of you must have understood everything, what are the formula, formats and ways I have shared. So it's quite enough. It is time for practice, and so keep on practicing. Stay blessed, stay at home. Bye bye.